السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ کتاب الطریقۃ العصریہ کا پہلے والیوم کا پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں اس کتاب کے بارے میں جان لینی ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس کتاب کے اندر نحو صرف کی جتنی بھی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، چاہے وہ اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، پھر اسم کے اعتبار سے معرفہ نکرہ ہو یا ضمیر ہو، اسم اشارہ ہو، جتنی بھی چیزیں، ان سب کے متعلق ایک پراپر ایکسرسائز کی کتاب ہے۔ یعنی اس کتاب میں سمجھنے والی چیزیں بہت کم ہیں، بنانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ سے بھی یہی توقع رکھی جائے گی کہ آپ اس کتاب کے ہر تمرین کو آپ بنائیں گے اور اس کو حل کریں گے۔ اس کتاب کو پڑھنے کا طریقہ یہ رہے گا کہ پہلے آپ اس کتاب کو خود پڑھیں گے، پہلا سبق خود سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے پھر کتاب کو سمجھیں گے کہ اس کو حل کیسے کرنا تھا۔ پھر اس ویڈیو کے آخر میں تمرین کو حل کرنے کا جو طریقہ بتایا جائے گا، اس طریقے کے مطابق آپ تمرین کو حل بھی کریں گے۔ اب آتے ہیں کہ کلاسز ہوگی کیسے۔ اس کتاب میں جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ پہلا ہے الدرس الاول، اس کے بعد ہے الدرس الثانی۔ تو الدرس الاول اور الدرس الثانی کے بیچ میں جب آپ آئیں گے، یعنی ہر سبق کے آخری میں جب آپ آئیں گے، تو یہاں پہ کچھ الفاظ معنی آپ کو دکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہوگا کہ یہ الفاظ معنی آپ کو زبانی طور پہ پوری اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے۔ جب یہ الفاظ معنی پورا یاد کر لیں گے، اس کے بعد آپ یہ قاعدہ پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ پڑھ لینے کے بعد تب آپ اس کتاب کو حل کریں گے، چیپٹر کو، اور پھر تمرین کو حل کریں گے۔ یعنی پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ الفاظ معنی یاد کریے۔ دوسرا اسٹیپ جو قاعدہ ہے، اس قاعدے کو پڑھ لیجئے۔ تیسرا اسٹیپ سبق پڑھ لیجئے۔ چوتھا اسٹیپ سبق کا جو آخر میں ایکسرسائز ہے اس کو بنا لیجئے۔ ان 4 طریقوں سے آپ کو اس کتاب کو حل کرنا ہے۔ پہلا جو ہمارا سبق ہے الدرس الاول، اس میں حاذا کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پہلے میں بورڈ پہ حاذا کے بارے میں مختصر جو کچھ تشریحات ہے، جو کچھ معلومات ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم واپس کتاب کے اوپر آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ چلیے، پہلا ہے الدرس الاول حاذا۔ حاذا کیا ہے؟ تو حاذا جو ہے یہ ایک اسم اشارہ ہے، قریب کے لیے اور واحد مذکر کے لیے آتا ہے۔ یعنی حاذا اسم اشارہ ہے، یعنی ایسا اسم جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ حاذا کا استعمال ہم کب کرتے ہیں؟ جب کوئی چیز میرے نزدیک میں ہو، ایک ہو اور مرد ہو۔ جیسے میرے پاس ایک قلم ہے جو میرے سامنے ہے، ایک دم نزدیک میں۔ قلم مذکر لفظ ہے تو ہم کہہ دیں گے حاذا کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ ہوتا ہے ما۔ ما مطلب ہوتا ہے کیا؟ یہ سوال کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس سے غیر عاقل کے لیے سوال پوچھا جاتا ہے۔ غیر عاقل یعنی انسان کے علاوہ، انسان کے متعلق سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں اس سے۔ جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آدمی کو دیکھ کے کہ یہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کون ہے۔ لیکن کتاب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے نا؟ کتاب کو ہم کون نہیں بولتے ہیں۔ تو ماں سے جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو انسان کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے، کیا ہے کیا ہے، تو ہم ماں کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان کے لیے پوچھنا ہوتا ہے تو ہم استعمال کرتے ہیں من۔ من کے معنی ہوتا ہے کون۔ یہ ہوتا ہے عاقل یعنی انسان کے لیے۔
इसी तरीके से अगर मन माने हो गया कौन, इसमें अगर लाम हरफ जर लगा दे तो ये बन गया लीमन, जिसके माने हो जाता है किसका या किसके लिए। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, हाजा रजुलुन और हाजा अर्रजुलु, इन दोनों का फर्क क्या है, दोनों में क्या फर्क है। अब यहां आपको जुमला याद होना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि इन दोनों का फर्क क्या है। सबसे पहले पहला जुमला देखते हैं। हाजा शुरू में आया है और मारिफा है, रजुलुन आखिर में आया है और नकेरा है। किस जुमले में ऐसा होता है, जुमला इस्मिया में। जुमला इस्मिया में क्या होता है, दो लफ्ज होते हैं, एक मारिफा जिसको मुब्तदा कहते हैं और दूसरा नकेरा जिसको खबर कहते हैं। तो यहां क्या हुआ, हाजा जो इसमें इशारा है वह मुब्तदा बन रहा है और रजुलुन खबर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाजा रजुलुन का मतलब हो जाएगा यह एक आदमी है, यानी मुकम्मल जुमला। लेकिन वहीं हाजा अर्रजुलु की बात करें तो हाजा पेश है। हाजा पे पेश क्यों है, हाजा पे तो नहीं लिखा हुआ है, हाजा मबनी है, इस पे पेश मानना पड़ेगा। अर्रजुलु पे पेश है। हाजा वाहिद है, अर्रजुलु वाहिद है। हाजा मुज़क्कर है, अर्रजुलु मुज़क्कर है। हाजा मारिफा है, इसमें इशारा होने की वजह से, अर्रजुलु मारिफा अलिफ लाम की वजह से। तो हाजा और रजुलु के बीच में चार बातें बराबर पाई गई, बराबरी है। इसका मतलब क्या हुआ, हाजा इसमें इशारा जो है वह असल में मौसूफ है। ठीक है। और रजुलु जो मुशारुन इलैहि है वह सिफत जैसा है, यानी मौसूफ सिफत जैसा तर्जमा नहीं करेंगे, मौसूफ सिफत जैसा है, यानी मौसूफ सिफत जैसा जुमला नाकिस है। इसको कहा जाता है मुरक्कबे इशारी। ठीक है। यानी मुरक्कब इशारी क्या है, मौसूफ सिफत वाला ही सारा प्रॉपर्टी इसके अंदर होता है, मौसूफ सिफत वाला ही सारा खूबी होता है। बस इसको मौसूफ सिफत इसलिए नहीं कहते कि रजुल सिफत थोड़ी बता रहा है, तो हम इसको मुरक्कब इशारी कहते हैं। ये उस सूरत में होता है जब आपका इसमें इशारा मुशारुन इलैहि में चार बातें मौसूफ सिफत जैसा पाया जा रहा। तो याद रखिएगा, हाजा रजुलुन ये मुरक्कब ताम है और हाजा अर्रजुलु ये मुरक्कब नाकिस है। ठीक है। हाजा रजुलु मुब्तदा खबर है, यानी ये एक आदमी है, और हाजा अर्रजुलु का मतलब हो जाएगा यह आदमी। ये फर्क बस आपको याद रखना है। मुरक्कब ताम में किसकी किस्म है, जुमला इस्मिया की। इसका मतलब हो गया यह एक आदमी है,
اور हाजा अर्रजुलु मुरक्कब नाकिस में किसकी किस्म है? मुरक्कब इशारी की। इसका तर्जमा है यह आदमी, अधूरा जुमला। चलिए अब चलते हैं किताब पे। अद्दरसुल अव्वलु किताबुन कलमुन। किताब और कलम पे मैं तनवीन क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि आपको ये कायदा मालूम है कि अरबी में किसी लफ्ज़ पे या तो अलिफ लाम पढ़ा जाता है या तनवीन पढ़ा जाता है। ये हो ही नहीं सकता है कि आप अलिफ लाम भी ना पढ़े और तनवीन ना पढ़े, वो जायज़ नहीं होता है। तो किताबुन कलमुन, हाजा, हाजा मतलब यह, हाजा किताबुन, यह किताब है। अब मैं किताबुन पे पेश तनवीन क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि किताबुन जो है वो खबर है और खबर हालत रफ़ी में होता है, तो पेश पढ़ना है। और दो पेश क्यों पढ़ रहा हूँ, तनवीन क्यों? इसलिए कि अलिफ लाम तो है नहीं, तो तनवीन पढ़ना पड़ेगा। खबर हमेशा नकेरा होता है, नकेरा तनवीन की अलामत है। हाजा किताबुन, यह एक किताब है। हाजा कलमुन, यह एक कलम है। हाजा वरकुन, यह एक पन्ना है, पेज है। मा हाजा, यह क्या है? मा हाजा, यह क्या है? हाजा किताबुन, यह एक किताब है। मा हाजा, यह क्या है? हाजा कलमुन, यह एक कलम है। मा हाजा, यह क्या है? हाजा कुर्सीयुन, यह एक कुर्सी है। मा हाजा, यह क्या है? हाजा मकतबुन, यह एक टेबल है। मा हाजा, यह क्या है? हाजा बाबुन, यह एक दरवाज़ा है। मा हाजा, यह क्या है? हाजा शुब्बाकुन, यह एक खिड़की है। मा हाजा, यह क्या है? हाजा जिदारुन, यह एक दीवार है। हाजा तालिबुन, यह तालिब इल्म है। हाजा उस्ताजुन, यह उस्ताज है। हाजा खादिमुन, यह खादिम है। मन हाजा, यह कौन है? मन हाजा, यह कौन है? हाजा तालिबुन, यह एक तालिब इल्म है। मन हाजा, यह कौन है? हाजा उस्ताजुन, यह एक उस्ताज है। मन हाजा, यह कौन है? हाजा खादिमुन, यह एक खादिम है। मन हाजा, यह कौन है? हाजा रजुलुन, यह एक आदमी है। मन हाजा, यह कौन है? हाजा वलदुन, यह एक लड़का है। हाजा सईदुन, यह सईद है। हाजा महमूदुन, यह महमूद है। हाजा हामिदुन, यह हामिद है। जैसे मुब्तदा ख़बर में बताया था ना कि जब खबर जो होता है वो अगर नाम होता है तो मारिफा हो जाता है, नकेरानी। जैसे हाजा यूसुफ, अना यूसुफ वाला मिसाल था। तो ऐसे ही हाजा सईदुन अगर हम कहें तो सईद चूँकि खबर है और ख़बर नाम है, तो कायदे से तो इसको नकेरा होना चाहिए था, मगर नाम होने की वजह से ये मारिफा इस्तेमाल हो जाता है। चलिए अब आ जाइए तमरीन पे। पहला तमरीन है, इन अल्फाज को हाजा के साथ मिला करके पढ़ो। पहला है कुर्सी, तो हाजा कुर्सीयुन, यह एक कुर्सी है। हाजा अमूदुन, यह एक पिलर है, सुतून है। हाजा सक़फ़ुन, यह छत है। हाजा कासुन, यह गिलास है। हाजा वरकुन, यह पन्ना है। हाजा तिलमीज़ुन, यह तालिब इल्म है। हाजा खादिमुन, यह खादिम है। हाजा मुअल्लिमुन, यह मुअल्लिम है। हाजा यूसुफ़ु, यह यूसुफ़ है। हाजा हारिसुन, यह हारिस है। दूसरा है, अरबी में तर्जमा करो। यह पेंसिल है। हाजा मिरसमुन, यह खिड़की है। हाजा शुब्बाकुन, यह दीवार है। हाजा जिदारुन, यह सुतून है। हाजा अमूदुन, यह लड़का है। हाजा वलदुन, यह मर्द है। हाजा रजुलुन, यह बाप है। हाजा अबुन, यह सईद है। हाजा सईदुन, यह मुदर्रिस है। हाजा मुदर्रिसुन, यह आलिम है। हाजा आलिमुन। ये जो दो तमरीन मैंने बनाया है, आप डायरेक्टली मेरा सुन मत लीजिएगा, पहले आप बनाइएगा, फिर चेक करिएगा कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है। पहले बनाना है फिर चेक करना है, ये नहीं कि पहले आप मेरा ही सुन लीजिएगा। इसके बाद आपका है अद्दरसुस्सानी। अद्दरसुस्सानी हाज़िही। हाज़िही क्या है? हाज़िही भी इसमें इशारा है। अद्दरसुस्सानी में क्या है? हाज़िही। हाज़िही किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये भी इसमें इशारा है, करीब के लिए इस्तेमाल होता है, और वाहिद मुअन्नस के लिए। जैसे हाज़िही फ़ातिमतु, यह फ़ातिमा है। या हाज़िही साअतुन, यह एक घड़ी है। अच्छा, जो कायदा है उसका है वही कायदा यहाँ भी है।
हाज़िही अल इमरातु मुरक्कब नाक़िस, यानी कि मुरक्कब इशारी है जिसका तर्जमा है यह औरत। और हाज़िही इमरातुन मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया है, इसका माने यह एक औरत है। वो फ़र्क याद रखिएगा। चलिए किताब से करते हैं। अद्दरसुस्सानी हाज़िही, यहाँ भी वही तरीका, पहले अल्फाज माने याद करिए, फिर कायदा पढ़िए, फिर आकर के किताब चैप्टर पढ़िए, फिर तमरीन हल करिए। हाज़िही, हाज़िही साअतुन, यह एक घड़ी है। हाज़िही कुर्रासतुन, यह एक कॉपी है। हाज़िही ज़हरतुन, यह एक फूल है। मा हाज़िही, ये क्या है। मा हाज़िही, ये क्या है। हाज़िही साअतुन, यह एक घड़ी है। मा हाज़िही, ये क्या है। हाज़िही कुर्रासतुन, यह एक कॉपी है। मा हाज़िही, ये क्या है। हाज़िही ज़हरतुन, यह एक फूल है। मा हाज़िही, ये क्या है। हाज़िही मिस्तरतुन, यह एक स्केल है, नापने वाला जो आला होता है। मा हाज़िही, ये क्या है। हाज़िही मिहफ़ज़तुन, यह एक बैग है। मा हाज़िही, ये क्या है। हाज़िही गुरफ़तुन, यह एक कमरा है। मा हाज़िही, ये क्या है। हाज़िही सुब्बूरतुन, यह एक ब्लैक बोर्ड है। हाज़िही तालिबतुन, यह एक तालिबा है। हाज़िही उस्ताज़तुन, यह एक उस्ताज़ा है। हाज़िही खादिमतुन, यह एक खादिमा है। मन हाज़िही, ये कौन है। मन हाज़िही, ये कौन है। हाज़िही तालिबतुन, यह तालिबा है। मन हाज़िही, ये कौन है। हाज़िही उस्ताज़तुन, यह उस्ताज़ा है। मन हाज़िही, ये कौन है। हाज़िही खादिमतुन, ये खादिमा है। मन हाज़िही, ये कौन है। हाज़िही इमरातुन, यह एक औरत है। मन हाज़िही, ये कौन है। हाज़िही बिन्तुन, यह एक लड़की है। मन हाज़िही, ये कौन है। हाज़िही फ़ातिमतु, ये फ़ातिमा है। हाज़िही ज़ैनबु, ज़ैनबुन क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, ज़ैनब गैर मुनसरिफ लफ्ज़ है, इस पर सिर्फ एक पेश होता है। हाज़िही ज़ैनबु, यह ज़ैनब है। हाज़िही सईदतु, यह सईदा है। हाज़िही सलमा, ये सलमा है। यहाँ भी वही इन अल्फाज को हाज़िही के साथ मिला के पढ़ना है। हाज़िही गुरफ़तुन, यह एक कमरा है। हाज़िही मिरवाहतुन, यह एक पंखा है। हाज़िही शजरतुन, यह एक दरख्त है। हाज़िही मिस्तरतुन, यह एक स्केल है। हाज़िही तल्लासतुन, यह एक झारन है। हाज़िही तिलमीज़तुन, यह एक तालिब इल्म है। हाज़िही उस्ताज़तुन, यह एक उस्ताज़ा है। हाज़िही खादिमतुन, यह एक खादिमा है। हाज़िही वालिदतुन, यह एक माँ है। हाज़िही बिन्तुन, यह एक लड़की है। फिर तर्जमा करना, यह कमरा है। हाज़िही गुरफ़तुन, यह दरख्त है। हाज़िही शजरतुन, यह ऐनक है। हाज़िही नज़्ज़ारतुन, यह साइकिल है। हाज़िही दर्राजतुन, यह घड़ी है। हाज़िही साअतुन, यह मदरसा है। हाज़िही मदरसतुन, यह मोटर है। हाज़िही सय्यारतुन, यह उस्तानी है। हाज़िही उस्ताज़तुन, यह सईदा है। हाज़िही सईदतु, यह बच्ची है। हाज़िही तिफ़लतुन। ये सब माने मुझे कैसे पता है, तो यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि पहले अल्फाज माने देख लीजिएगा। हाज़िही, अब उर्दू में तर्जमा करना, तीसरी तमरीन। हाज़िही मिरवाहतुन, यह एक पंखा है। हाज़िही नज़्ज़ारतुन, यह एक चश्मा है। हाज़िही इमरातुन, यह एक घड़ी है। हाज़िही इमरातुन, यह एक औरत है। हाज़िही साअतुन, यह एक घड़ी है। हाज़िही वर्दतुन, यह एक गुलाब का फूल है। हाज़िही गुरफ़तुन, यह एक कमरा है। हाज़िही उम्मुन, यह माँ है। हाज़िही बिन्तुन, यह बेटी है। हाज़िही सईदतु, यह सईदा है। हाज़िही शरीफ़तुन, यह शरीफ़ा है। उसका बाद आपका नेक्स्ट सबक जो है वो हाज़ा और ज़ाका के बारे में है। इसको इंशाअल्लाह अगले क्लास में, इसको 2-2 चैप्टर करके करना है आपको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।